ये 2 दिन का आयोजन है और आज आयोजन का प्रथम दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन करेंगे और सत्र को संबोधित भी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन के लिए भव्य प्रबंध किया गया है। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के अग्रणी व्यक्ति, अधिकारीगण और बौद्ध धर्म के अनुयायी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों का जवाब, प्रथाओं के लिए दर्शन। Namaskar, good morning. Welcome to this very special broadcast on the inaugural session of the Global Buddhist Summit being held in New Delhi at the Ashoka Hotel. That is on today and tomorrow, the 20th and the 21st of April 2023. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will be delivering the inaugural address at the Global Buddhist Summit in just a short while from now. The Global Buddhist Summit is being conducted by the Ministry of Culture and the International Buddhist Confederation. The theme of the Global Buddhist Summit is Responses to Contemporary Challenges, Philosophy to Praxis. The summit aims at enhancing cultural and diplomatic relationships with other countries and marks the significance and importance of India in Buddhism, as Buddhism and Lord Buddha were born in India. And Neelam and dear listeners, the Prime Minister had said in the recent past that Buddha is beyond geographical boundaries. He is for everyone. He belongs to everyone, the Prime Minister has said. The Prime Minister had on several occasions projected Buddhism as unique part of India's foreign policy. In the last 9 years, Prime Minister has visited several Buddhist or Buddhist shared heritage countries. India's Act East policy is a major component of the Buddhist diplomacy. In the last couple of years, India has deepened linkages with Buddhist nations by allowing direct air travel between places like Kushinagar and Colombo, Bangkok, etc. The Buddhist circuit train is also a big hit with the Buddhist pilgrims from East, South and Southeast Asia. The address by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on the UN Vesak Day 2017 at Colombo, where the Prime Minister was the chief guest, was centered on religious and cultural linkages based on Buddhism between India and Sri Lanka. जी कौशिक, और ये हमेशा कहा जाता रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने दुनिया को युद्ध दिया, लेकिन हमने बुद्ध दिया। यानी हमने शांति का मार्ग जो है उसकी राह भी दुनिया को दिखाई है और अपने आप में बहुत ही बड़ा आयोजन है। बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। ताइवान, थाईलैंड, इजराइल, डेनमार्क, अमेरिका, जर्मनी, मंगोलिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, रूस, मेक्सिको, नेपाल, इनके अलावा भी बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस आयोजन का हिस्सा हैं। राज्य क्षेत्रों के संगठनों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और नागरिक समूहों और महाविद्यालयों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन की, तो उन्हें सुनने के लिए तो हमेशा उत्सुकता बनी ही रहती है। इसके अलावा मंच पर श्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति रहेगी। माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। श्री किरण रिजिजू की उपस्थिति रहेगी। माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री, और श्रीमती मीनाक्षी लेखी, माननीय संस्कृति विदेश राज्य मंत्री हैं। इनकी उपस्थिति इस आयोजन में रहेगी। इसके अलावा देश विदेश के बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। सम्मेलन के माध्यम से you are absolutely right, Neelam. We will be seeing that there will be academic sessions and also Sangha sessions during the post-inaugural
sessions that we have today. जी और पिछले साल ही कौशिक जो आईबीसी है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। आज वैशाख अमावस्या का दिवस भी है तो स्नान दान ध्यान और उपासना के लिए बेहद शुभ दिन है आज का। और ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भी अपनी वर्षगांठ की ओर आगे बढ़ रहा है इस तरह के आयोजन में उनकी उपस्थिति उनके माध्यम से इस तरह का आयोजन किया जाना संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर और भारत में ये आयोजन होना इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर ये कहा है कि ये जो सदी है ये युद्ध की सदी नहीं है, हमें प्रगति की ओर देखना है। और हम आज भारत में जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल का समय चल रहा है, उसके अंतर्गत ये पावन आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग देशों के लगभग 171 प्रतिनिधि इस सम्मेलन के लिए भारत पधारे हैं और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधियों की भी इस दौरान उपस्थिति रहेगी। और आयोजन का जो महत्व है वो यही है कि दुनिया आज जिन समस्याओं से जूझ रही है जो हमें लगता है कि वो मौजूदा समय है उसकी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। इनके बारे में बहुत पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे धर्म गुरुओं ने बात की है, उसके बारे में लिखा जा चुका है। और इसी आयोजन के माध्यम से जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान तलाशने का भी प्रयास किया जाएगा, चाहे वो पर्यावरण की बात हो या फिर जो भौतिकतावाद की ओर हम बढ़ रहे हैं उसकी जो परेशानियां हैं, बाजारवाद की जो परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों का जो समय है ये उसका समाधान इसी तरह के आयोजनों में तलाशने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे सत्र इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। इन 2 दिनों में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो है गणमान्य अतिथि हैं वो सत्रों को संबोधित करेंगे और विशेषज्ञों के माध्यम से ये तलाशा जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं, हमें क्या दिशा दिखलाते हैं हमारी जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनके समाधान की दिशा में। Yes, absolutely, Neelam. The summit is an effort towards engaging the global Buddhist Dhamma leadership and scholars on matters of Buddhist and universal concerns, and to come up with the policy inputs to address them collectively. The discussions in the summit will explore how the Buddha's Dhamma fundamental values can provide inspiration and guidance in the contemporary settings. The summit will witness participation of eminent scholars, Sangha leaders and Dhamma practitioners from all over the world who will discuss pressing global issues and look for answers in the Buddha Dhamma that is based on universal values. The discussions will be held under 4 themes: Buddha Dhamma and peace, Buddha Dhamma environmental crisis, health and sustainability, preservation of Nalanda Buddhist tradition, Buddha Dhamma pilgrimage, living heritage and Buddha relics, a resilient foundation of India's centuries-old cultural links to countries in South, Southeast and East Asia. And as Neelam has pointed out that 171 foreign delegates, including the religious practitioners of the Buddha Dhamma, and 150 Indian delegates will be participating in the 2-day Global Buddhist Summit. As we see that the world today is facing multifarious catastrophes, if one may call it that. We have for the last more than a year now the crisis in Europe, the conflict between Ukraine and Russia, and also we all are now subjected or being subject to climate change, that is global warming. The Buddha Dhamma and the teachings of Lord Buddha, if we follow them, will surely lead us to the solutions that we seek and that we always are seeking. And the Global Buddhist Summit is going to discuss and deliberate upon responses to contemporary challenges. That in fact is the theme of this summit, and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will be inaugurating the Global Buddhist Summit in just a short while from now. Upon his arrival at the Ashoka Hotel, he will be received by the dignitaries. After that, he will also have a look at the Buddhist exhibition that is on display here. And then, of course, he will be interacting with the various delegates. And the Honorable Minister for
Tourism and Culture, Shri Gangapuram Kishan Reddy, the Honorable Minister for Law and Justice, Shri Kiran Rijiju, the Honorable Minister for State for Culture, Shri Arjun Ram Meghwal, and Srimati Meenakshi Lekhi, the Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, would be present at the inaugural session along with the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. जी, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हम सुनते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भी आज के दौर में मौजूदा चुनौतियों की ओर हमें इशारा करती हैं कि इनके समाधान के लिए हम वापस अपने उन्हीं आध्यात्म की ओर जाएं जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और भारत जो कि हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलता है, जो कि अपना निकटतम पड़ोस है उसके बारे में सोचता है, चाहे कोविड का दौर रहा हो, महामारियों से बचाव की बात हो, या फिर आर्थिक संकट हो, या फिर खाद्यान्न का संकट हो। ऐसे समय में भारत ने हमेशा ही मदद की है अपने पड़ोसियों की, पड़ोसी देशों की, पड़ोसी राज्यों की। तो ये जो अवधारणा आती है, ये जो हमारी संस्कृति है, पूरे देश को अपना कुटुंब मानना, अपने परिवार मानने की जो संस्कृति है, वो हमारी इसी आध्यात्मिकता ने हमें दी है। और जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इसीलिए अलग अलग सत्र जो आयोजित किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि समाधान कहीं ना कहीं छिपा है हमारे आध्यात्म में, जो हमें और ज़्यादा समझदार बनाता है, हमें एक सुलझा हुआ इंसान बनाता है और हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देता है। और कौशिक, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस था। हम कोशिश ये करते हैं उस दिन के हम अपने पुरखों की दी हुई, अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत का महत्व समझें, उसके बारे में बात करें, उसे संजो कर रखें और आने वाली पीढ़ियों को वो विरासत हम सौंपें। ऐसे में भारत में बौद्ध धर्म की जो विरासत है, जो पवित्र स्थल हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, नालंदा हो, सारनाथ हो, बौद्ध गया हो, गया जी सम्मान से कहा जाता है, ऐसे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का भी अवसर मिलता है इस तरह के आयोजनों से। Yes, absolutely, Neelam. You're in fact very right that on the 18th of April we celebrated World Heritage Day, and just in a couple of days we'll be also celebrating Akshaya Tritiya, one of the holiest of holy days that is celebrated in India. And this is also a time for contemplation, as the Buddha Dhamma is based on study and contemplation. And as you rightly mentioned, that the answers that we seek mostly lie within, and that is the message of the Buddha. And I think the message of Lord Gautama the Buddha is not only universal but also very contemporary in these challenging times, as the Honorable Prime Minister had said on many an occasion, that the teachings of Lord Buddha is the guide or the torch for us in seeking solutions to the current problems that besiege the world. And also next week on the 5th of May we shall be celebrating the birth anniversary of Lord Gautama the Buddha, and his teachings and the path shown by him are not only contemporary but also modern. And now we see that the Honorable Prime Minister has arrived at the Ashoka Hotel, and he is paying floral tributes at the statue of Lord Buddha. The Honorable Prime Minister doing pranam at the statue of Lord Buddha. माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति को देखते हुए पूरा अनुशासन, लेकिन साथ ही श्रद्धा भाव भी और मंगलाचरण यहाँ पर अभी किया जा रहा है। आइए करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यहाँ उपस्थित विद्वान धर्माचार्यों का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर। परम आदरणीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उच्चारित मंगलाचरण के दिव्य सुरों के मध्य शाक्य मुनि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंगलाचरण विश्व के मंगल की आकांक्षाओं को, दुनिया के कल्याण की प्रार्थनाओं को खुद में समाहित किए महात्मा बुद्ध के विश्व शांति के संदेश को गुंजित करते हुए
Namaskar, ladies and gentlemen. On behalf of Ministry of Culture, the Government of India, we welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on this momentous occasion of Global Buddhist Summit 2023. It's a great honor to have the august presence of our Honorable Prime Minister amidst us, ladies and gentlemen, as we embark on this auspicious two-day summit. We are also blessed to have the revered presence of Venerable Dr. Dhammapaya, Secretary General, International Buddhist Confederation. It's a great privilege to extend a hearty welcome to our honorable ministers gracing the dais. Proud moments, ladies and gentlemen, as we also welcome illustrious Sangha leaders, Dharma practitioners, scholars, बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर ambassadors नजर आ across the रहे हैं globe जो who have पंक्तिबद्ध so तरीके से benevolently बैठे हैं congregated here to discuss modern-day global challenges and help in finding solutions through the teachings and principles of Buddha Dhamma. GBS 2023 is a historical summit as we have the blessed participation of supreme heads and other senior-most members of the Holy Sangha and illustrious scholars from 30 countries from all parts of the globe. आज के इस परम पावन पर्व की दिव्यता में भव्यता में चांद लगाने के लिए देश विदेश से यहां पधारे हमारे हर मेहमान का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आजादी का अमृतकाल G20 के विश्व मंच से अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम का संदेश देती लोकतंत्र की जननी भारत और इस विशालतम लोकतंत्र के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति, दुनिया के 30 देशों से पधारे परम आदरणीय धर्माचार्यों का अनुपम सानिध्य, हमारा सौभाग्य कि आज हम इन अलौकिक पलों के साक्षी हैं। आइए मिलकर एक बार पुनः करतल ध्वनि से अभिवादन करें। प्लीज जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। इस प्रांगण में विराजमान सभी गणमान्य विभूतियों का, महात्मा बुद्ध के विश्व कल्याण के संदेश का अलख जगाते सभी विद्वानों का अभिनंदन करें इन अद्भुत पलों का जहां बौद्धमयी संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरी है। Thank you, ladies and gentlemen. International Buddhist Confederation is an apex body under the aegis of Ministry of Culture, Government of India. It provides a global platform for preserving, propagating and promoting shared Buddhist values and tradition. We are indeed honored to have Venerable Dr. Dhammapaya, Secretary General IBC amidst us. May I request you, sir, for your blessings with opening invocation. Venerable Dr. Dhammapaya, please. Venerable Dhammapriya, the Secretary General of the International Buddhist Conference, will now address the Global Buddhist Summit's inaugural session. Namami. Andhabhuto ayang loko tanukhitta vipassati sakunto jhalamuttava appo saghaya gacchati. When there is darkness, we need light. The infinite light of enlightenment, Amitabha, and wisdom, Jnana Chakhu Arpanya, to dispel the darkness of violence, hatred, animosity, ill will, terrorism, war, and ignorance from the face of the world. May the light of boundless compassion emanate from the heart of all of us and permeate the whole world with joy, peace, harmony, and a feeling of mutual trust as we all belong to the same human family, having a shared Mother Earth and a common future. May the Global Buddhist Summit be a grand success, and we, as followers of the Buddha and responsible citizens of the world, protect the nature, environment, and the biodiversity on this planet Earth. Collective wisdom and united voice is the motto of IBC, International Buddhist Confederation. Let's join hands and pledge to act collectively to contribute our bit in making the world a peaceful place to live in, with
abundance of all good and positive things. Chirang tithatu lokasming samma sambuddha sasanang tasming sagarava nityang hantu sabbepi panino. May the teachings of the Enlightened One last long in the world. May all beings pay their due respect to it always. May the pure and universal Dharma last forever and spread everywhere in the world for the welfare, benefit and happiness of all. Bhavatu Sabbha Mangalam. बौद्ध परिसंघ के महासचिव श्रद्धेय श्री धम्मपिया ने स्वागत उद्बोधन दिया और स्वागत उद्बोधन में उन्होंने यही कहा कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए और ज्यादा शांति के प्रसार के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए, सबको हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। Yes, absolutely, Neelam, and the Secretary General of the International Buddhist Confederation, Venerable Dhammapiya, said in his invocation at the inaugural that the next 2 days the delegates will be confabulating on various issues, and now Shri Gangapuram Kishan Reddy, the Minister for Culture and Tourism and the Department of Northeast Affairs, is presenting a memento and a khadag to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र पहनाकर श्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया और स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के बाद अतिथिगण फिर से अपने आसन पर इस समय विराजमान हैं और साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धेय बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध गण हैं, उनकी उपस्थिति से आयोजन जो है वो थोड़ा और महिमामंडित लग रहा है, आयोजन की भव्यता और बढ़ गई है। साथ ही जो एक भाव होता है श्रद्धा का, वो यहाँ पर सभी के चेहरे पर देखा जा सकता है। माननीय जी किशन रेड्डी का संबोधन आप। संगम शरणम गच्छामि। इस 2 दिवसीय फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में दुनिया भर से आए सभी बौद्ध गुरुओं को और सभी बुद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मैं सादर नमन करता हूं। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य किरण रिजवी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री मीनाक्षी लेखी जी और eminent scholars of international Sangha leaders, venerable monks, prominent Buddhist followers, बौद्ध धर्म के सभी प्रचारक, peoples from Indian Sangha communities, respected ambassadors and diplomats, सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों और यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं भारत सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा होना हम सब के लिए गर्व की बात है। इस फर्स्ट ग्लोबल समिट का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस दो दिवसीय फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का थीम रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस रखा गया है। इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में दुनिया के अलग अलग 30 देशों से मोर देन 30 कंट्रीज, लगभग 170 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हिस्सा ले रही हैं। साथ ही विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स इस समिट में भाग ले रही हैं और इस 2 दिवसीय ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में पीस, एनवायरनमेंट, मोरालिटी, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जैसे विषयों पर
विस्तृत चर्चा होगी। इस 2 दिवसीय समिट में हम 5 अलग अलग एग्जीबिशंस का भी प्रदर्शन कर रही हैं। इस समिट में बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ हमें कई महान दार्शनिक और प्रमुख लोगों का मार्गदर्शन इस 2 दिन में मिलने वाला है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में हमारे सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मजबूत करने में मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई मंचों से अलग अलग समय पर इस बात को कहा कि दुनिया के प्रमुख चुनौतियों का समाधान बौद्ध जीवन दर्शन से ही हो सकता है। ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट उस दिशा में एक सफल प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। हमने बुद्ध उत्सवों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर हर साल उत्सव मनाते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो या फिर आषाढ़ पूर्णिमा हो। भारत सरकार दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाए। भारत सरकार बुद्ध भगवान की जयंती पर लुम्बिनी जो नेपाल में है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। इस इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट का निर्माण के लिए भूमि पूजन श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के द्वारा पिछले साल संपन्न हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स वेरियस बुद्धिस्ट बोथ और विद इन कंट्री एंड इंटरनेशनल। वी आर डेवलपिंग ऑल दी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। भारत सरकार ने बुद्ध सर्किट के नाम पर सभी भगवान बुद्ध के जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उसमें दर्शन करने के लिए भारत गौरव यात्रा के स्पेशल ट्रेन्स भी चला रहे हैं। इसके अलावा देश में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट एजुकेशन देने में अपना भूमिका निभा रही हैं और अलग अलग बुद्धिस्ट संस्थाओं का भारत सरकार के द्वारा हर तरह प्रोत्साहित कर रही हैं। अंत में एक बार फिर दुनिया से सबसे बड़े आबादी और सबसे बड़े बजट तंत्र के वाले देश के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, सभी बौद्ध गुरुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। वी प्रे टू यू टू ब्लेस द अर्थ, वी प्रे टू यू ब्लेस इंडिया, वी प्रे टू यू bless the people, we pray to you bless the our Prime Minister Narendra Modi ji. India is a birthplace of Buddhism, India is the land of Buddhism. Jai Hind, thank you. That was the Minister for Culture and Department of Northeastern Region, Shri Gangapuram Kishan Reddy, delivering the welcome address. And this Global Buddhist Summit has been attended by more than 170 foreign delegates from 30 countries and more than 150 Indian Buddhist delegates. And the 2-day Global Buddhist Summit will be contemplating and discussing upon a range of global issues of contemporary importance. The Honorable Minister for Law and Justice, Shri Kiran. Present on the occasion, Shri G. Kishan Reddy ji, Arjun Ram Meghwal ji, Srimati Meenakshi Lekhi ji, the Secretary General of the International Buddhist Confederation, Dr. Dhammapiya ji, the most venerable members of the Mahasangha, the senior political leaders present here, members of the diplomatic community, dignitaries from different countries, erudite Buddhist scholars, Dhamma practitioners, media persons, ladies and gentlemen. Greetings and Namami to all. Welcome to the Global Buddhist Summit. I am deeply honored
to have this opportunity to participate at the Global Buddhist Summit 2023. As we gather here today, we are reminded of the universal teachings of the Lord Buddha and the significance of his Dhamma that foster wisdom, well-being, and the world peace with compassion. I find myself fortunate to have been associated with the IBC since its inception. I have been seeing the IBC growing and promoting the Buddha legacy as an umbrella body both in India and at the world at large. The support from the Mahasangha world over and the Supreme Patriarchs, Sangha Nayaks, meditation masters, various Buddhist associations, monastic bodies, learned Buddhist scholars have brought us to this historic day when we are all witnessing this auspicious day happening. It is very appropriate to see the theme of this Global Buddhist Summit, responses to the contemporary challenges, philosophy to the praxis, and that the summit is divided into two separate parallel sessions, a Sangha session and an academic session with diverse sub-themes such as Buddha Dhamma and peace, environmental crisis, health and sustainability, preservation of Nalanda Buddhist tradition, Buddha Dhamma pilgrimage, living heritage and Buddha relics, etc. We know that the Buddha Dhamma is not just a religion, it is a way of life that emphasizes compassion towards all beings. It is also addressing the most pressing issues facing our world today, and that is the well-being of the people. The Dhamma has much to teach us about the way as to how to live in peace, happiness and harmony within the natural world. The teachings of impermanence and interdependence remind us that everything in this world is changing and are interconnected, and that our actions have consequences not only on us but the world outside. We must learn to live in a way that is sustainable and respectful of the earth and its resources. First of all, I would like to acknowledge, and it's very heartwarming to see that so many dignitaries across the globe are here, and in the august presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are witnessing this historic event. And it is also very heartwarming to acknowledge that Government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has taken several steps for the promotion and preservation of Buddhist culture in the country. From 2014, the Government of India has taken a lead role in all the events related to Buddhism and also associated with Lord Buddha. All the important events are celebrated across the country, where we see very active role played by the state. For the first time, Honorable Prime Minister himself takes the lead role in all the major events, particularly the Vesak Buddha Purnima, where Honorable Prime Minister himself makes his presence by taking a lead role not only in India but in the neighboring countries also. For the first time, I can proudly say that India, as a birthplace of Lord Buddha, is doing its duty. By calling this Global Buddhist Summit, India is really taking the lead role in honoring not only the teaching of Lord Buddha, but showing a lead role and a way forward for the global community. I'm confident that the benign presence of all of you will certainly provide us with a platform to discuss and exchange ideas and to strengthen our commitment towards the Buddha Dhamma and its significance to the global community. Before I conclude, I congratulate all the members of the International Buddhist Confederation who have come from all over the world to attend this great historical summit and to make it successful. May the pure Dhamma endure for a long time. May the pure Dhamma be venerated. Bhavatu Sabba Mangalam. Thank you very much. Jai Hind.
श्री किरण रिजिजू ने अभी अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन में उन्होंने वही बात कही जो इस आयोजन के बारे में हम कहते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार ये बात कही है कि भारत ये चाहता है कि जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं वो पूरी दुनिया में फैले और जो समस्याएं हैं उनका समाधान उन मूल्यों से निकले। ये हमारी प्रतिबद्धता ही है, इस तरह के आयोजन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम ये चाहते हैं कि जो पौराणिक स्थल हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, उन तक पहुंचे दुनिया के बहुत सारे लोग और अनुयायी। दुनिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म जो है उसे प्रमुखता प्राप्त है, और अगर हम संख्या की बात करें तो बहुत सारे देश उसमें असंख्य लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और समय समय पर वो भारत भी आते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे स्थल हैं जिनका बहुत महत्व है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व है, और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए। और अब यहाँ पर डॉक्टर सुभद्रा देसाई का शास्त्रीय गायन। व अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सत्कच्च सुनन्तु भासितम् तस्माहि भूता निसामेथ सब्बे मित्तं करोथ मानुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्षत अपमत्ता यकिञ्चिवित्तम् इधवाहुर्वा सज्ञे सुवायं रतनं पणितं ननो समङ्गत्ति तथागतेन इदं बुद्धे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु क्षयं विरागम् अमदं पणितं यदा जगासत्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समर्थिके चिदं धम्मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु यं बुद्धसिद्धो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यामाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदं पिदं मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु ये पुग्गला 800 पसथा चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतः सतावका एते सुदिन्नानि महफलानि इदं संगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु ये सुप्रयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गौतमशासनं
ते पत्तिपत्ता अमतं विगय लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमान इदमपि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यथिन्नखिलो पठविंसितोऽस्या चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो तथूपमं सत्पुरुषं वदामि यो वर्यसच्चानि अवेच पश्यति इदमपि संज्ञे रतनं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपण्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भुसप्पमता न ते भवङ्गठमङ्गादियन्ति इदमपि संज्ञे रतनं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशयि इदमपि बुद्धे रतनं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु क्षीणं पुराणं नवं नद्विसम्भवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मि ते क्षीणबीजा अवरुह्य छिन्ना निभ्रन्ति धीरा यथायं पदीपो इदमपि संज्ञे रतनं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुस्सपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुस्सपूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि यायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुस्सपूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु
डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने अभी यहाँ पर आयोजन में अपनी गायन प्रस्तुति दी। ये संगीत क्षेत्र में शोध कार्य से भी जुड़ी रही हैं और आकाशवाणी के भजन गायन कलाकारों के पैनल में भी रही हैं। इन्होंने पाली रचनाओं को भी अपनी आवाज दी है। यहाँ पर माहौल और भी ज्यादा आध्यात्मिक, उनके गायन को सराहते हुए श्रोतागणों ने, दर्शकों ने करतल ध्वनि से उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही जो बौद्ध भिक्षु परम श्रद्धे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो क्योंकि इन रचनाओं से उनका गहरा जुड़ाव रहा है, तो आंख बंद कर इन रचनाओं का गायन का आनंद लेते हुए। Yes, absolutely, Neelam. You very rightly mentioned that Dr. Subhadra Desai has been associated with research in the Buddhist religion, and also she is a well-known artiste of All India Radio. And the Honorable Prime Minister is now coming to the podium where the Buddhist monks who have come for the Global Buddhist Summit are sitting, and the Honorable Prime Minister will be presenting robes to the monks, and this is known as Chivardan. The Honorable Prime Minister is presenting each and every monk here with their traditional robes, and after that the Honorable Prime Minister is doing a namaskar, bowing his head. This shows the Honorable Prime Minister's deep humility and his dedication towards the Buddha Dhamma and Lord Buddha. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु जो वस्त्र धारण करते हैं उसे चीवर कहा जाता है। अच्छी तरह से तय किया हुआ और चमकीले रिबन से लपेटा हुआ एक भेंट स्वरूप ये चीवर है। प्रधानमंत्री जी सभी बौद्ध भिक्षुओं को अपने हाथों से चीवर दान करने के बाद झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और उनका प्रणाम स्वीकार किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक हल्के नीले रंग का, आसमानी रंग का वस्त्र, अंग वस्त्र भेंट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने उसे लेते ही धारण किया और फिर बाद में किसी को सौंपा। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक सभी बौद्ध भिक्षुओं को चीवर भेंट करते हुए और चीवर भेंट करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में उनका अभिवादन करते हुए। And also, Neelam, this is to be noted that the Honorable Prime Minister is making it a point to, exchange pleasantries with each of the monks that he is presenting the chivas to. And he is also patiently listening to some of the monks who are talking to the Honorable Prime Minister. मुस्कुराते हुए सभी से आत्मीय संवाद और उनकी बात सुनते हुए, उनकी बातों का जवाब देते हुए। Yes, and this is one of the reasons why the Honorable Prime Minister of India is the most popular global leader of contemporary times, if one may say so, that in a recent poll, and this poll was held as early as 2 weeks back, the Honorable Prime Minister's popularity is the highest across all other political leaders across the globe, including in the Western world. So the Honorable Prime Minister has this deep connect with people, whether at India and abroad. And the very sight of this, as we have been mentioning, that the Prime Minister walking up to each and every delegate monk who's here and presenting them with chivar, and also receiving the angavastra from some of the monks, and after that doing a deep bow and namaskar to the monks, and also inquiring about their well-being or exchanging pleasantries. And some monks themselves are talking to the Prime Minister, taking a little more time. And everyone here, Neelam and dear listeners, everyone here at the Ashoka Hotel who are taking part in the Global Buddhist Summit are now eagerly and very eagerly looking forward to the keynote address by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, at the Global Buddhist Summit.
माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की सभी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब कोई ना कोई इस तरह की दिशा वो दुनिया को दिखाते हैं जिस पर बाद में वो कई देशों के लिए लक्ष्य बन जाता है। और ये जैसा कि अभी कौशिक ने बताया कि यही वजह है माननीय प्रधानमंत्री जी के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने की और पसंदीदा वैश्विक नेता होने की वजह यही है शायद कि वो हर उम्र के व्यक्ति से, हर वर्ग से एक निजी जुड़ाव रखते हैं और जो जीवन यापन लोग कर रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली है, उनकी समस्याओं का अनुभव उनको है, प्रधानमंत्री जी को है। और उनका अपना जीवन जिस तरह से बहुत ही विविधतापूर्ण रहा है, जिसमें कि श्रम भी शामिल है, आध्यात्मिकता भी शामिल है और जिसमें राजनीति भी शामिल है, लेकिन साथ ही जो सेवा भाव है वो भी शामिल है। तो जो अलग अलग अनुभव उनके रहे हैं, इस वजह से वो समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। फिर चाहे परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के मन के भाव समझना हो, उनका तनाव समझना हो, और या फिर इस तरह से आध्यात्मिक दुनिया जो है उसमें गहरी पकड़ रखना हो, और या फिर मन की बात के माध्यम से समाज के हर वर्ग की बात को सामने लाना हो। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पोडियम की ओर बढ़ते हुए और सभी खड़े होकर इस पल का स्वागत करते हुए, क्योंकि उनके संबोधन की प्रतीक्षा जैसे हमें और हमारे श्रोताओं को है, उसी तरह उपस्थित जनों को भी है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान किरण रिजिजू जी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल, देश विदेश से यहाँ पधारे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से
भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुएन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पति-पत्ती की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है
समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था। बुद्ध ने महल, राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। हमें हमारे आसपास गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में सोचना ही होगा। हमें संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा। एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है, यही आवश्यक है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। साथियों, ये बात सर्वस्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा, बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। साथियों, आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले
बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जयन वेरन पसवती, जयन वेरन पसवती, दुखन सेति पराजितो, उपसंतो सुखन सेति, हित्व जय पराजय। अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्तिध उदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैसे बहुत बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है। वैर से वैर शांत नहीं होता है, वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है, सुखा संज्ञस्य सामग्री समज्ञानम तपो सुखम। अर्थात संघों के बीच एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में ही सुख है। साथियों, हम देखते हैं आज अपने विचारों, अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठमन, पति रूपे निवेशे। यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अपदीपो भवः। यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है, अपदीपो भवः। यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है। इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है। अशांति नहीं, शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे
कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। माव मय्येथ पुण्यस, माव मय्येथ पुण्यस न मन तन आगमिष्यति उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति धीरो पुरति पुण्यस थोकम थोकमपि आचिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा, ये सोचकर पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। साथियों, हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो, हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है। अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है। साथियों, आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम, इस भाव को आत्मसात करे। बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए, तभी भवतु सब मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा। इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है। मां निवत्त अभिक्कम, यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रण पर यहां पधारने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं और इस 2 दिवसीय विचार विमर्श से मानवता को नया प्रकाश मिलेगा, नई प्रेरणा मिलेगी, नया साहस मिलेगा, नया सामर्थ्य मिलेगा। यही भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमो बुद्धाय।
The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, delivered the keynote address at the Global Buddhist Summit being held at the Ashoka Hotel in New Delhi. The Honorable Prime Minister said that he is deeply connected with the Buddha Dhamma. His birthplace, Vadnagar, is a Buddhist location. Huan Shuang visited it in 640 Christian era. The Honorable Prime Minister recounted that during the last 9 years of the National Democratic Alliance government, the various steps that has been taken by the government, that is the India-Nepal Buddhist Circuit, the Sarnath Lumbini Circuit, and the Kushinagar Airport, which connects places of Buddhist interests globally with India, and the setting up of the India Center for Buddhist Culture at Lumbini. The Prime Minister said that global problems are our problem, and that is what has been the teaching of the Buddha. He said that India has been following the teaching of Buddha and has been the first responder during calamities like the Turkey earthquake. Renunciation is a way of Buddhist life, and we should live for others' sakes and their problems. We should not be self-centered. Countries have to think of the poor countries and poor people. Peace is the buzzword of the 21st century. We should have the good of global interests all the time. This is the most challenging time of the century, said the Prime Minister. The world has to follow the path of the Lord Buddha. Appo Devo Bhava, be your own light. You have to search for your own light and be your own guide, said the Honorable Prime Minister. He said the mission life, that is the lifestyle for environment, is based on the teachings of Lord Buddha. He ended his keynote address by saying Bhavatu Sarvamangalam, that is the good of the entire world, and said that talking of Buddha, what the Lord Buddha said is, do not turn back, go forward. तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओम मगध कहाँ मेरे अशोक, वो चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, रे कपिल वस्तु बुद्ध देव के मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान चीन जापान तक गए संदेश कहाँ। सब यही है इस तरह के आयोजनों में पुनः पुनः जीवित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध एक बोध है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर चेतना है और वैश्विक कल्याण ही भारत का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज नई दिल्ली के अशोक होटल में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिन का आयोजन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया। कार्यक्रम का सजीव विवरण आप आकाशवाणी से सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार वत्स और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार। जाने ये कदर